Good morning, students. In previous session, we will learn about preparation of haloalkane, right? From alcohol. We can see the also mechanism of alcohol, right? In alcohol, we can use concentrate hydrochloric acid or anhydrous zinc chloride, that is catalyst, right? And we got haloalkane. Let's see the reaction. Alcohol यानी कि ROH, right? In alcohol we can use concentrate HCl plus anhydrous ZnCl2, right? So here we can use concentrate HCl or anhydrous ZnCl2, right? So what happened? Displacement of alcohol group from this chlorine, right? So here we can see RCl, right? यानी कि haloalkane or alkyl halide, plus here H and here OH, this combine and we can get H2O यानी कि water, right? Here from alcohol, right, we can use concentrate HCl and anhydrous ZnCl2. Now in next reaction we can use phosphorus halide, यानी कि हम यूज करते हैं PX3 और PCl5 और रेड P, right? So here today we can see phosphorus halide in three types of reaction. First one is phosphorus trichloride, phosphorus pentachloride or red P, right? So let's see first reaction with PX3. It's called phosphorus halide. It's very simple reaction, it's very easy. Phosphorus halide, right? First we take alcohol, right? ROH plus PX3, यानी कि if we can take here chlorine, so it is phosphorus trichloride, right? It's give, we know that the halide group X, right? Displacement of alcohol group, right? So RCl यानी कि haloalkane, right? Next, which product we get? Here P, here OH, right? So POH3, but we can write in a way H3PO3, right? It's called phosphorus acid. Right? Now we can see here it is unbalanced equation. Why? Because here X3, here X is only 1. Second things, here H in reactant H is 1, in product H is 3. So what we can do in simple way, balance the reaction. How can balance the reaction? It's very simple. Here H is 3 in product, in reactant H is 1. So simple, what we can do, we can multiply with 3. Okay, now you can see alkyl group is 3, here alkyl group is 1. So what we can do, simple multiply with 3. Clear? Now it is balanced the reaction. Okay, in examination आपको क्या करना है कि आपको आता है, नो डाउट इक्वेशन बहुत इजी है, लेकिन इक्वेशन के बाद वो बैलेंस है कि नहीं वो पहले चेक करना है, राइट? अगर इक्वेशन सही है बट उसका वो अनबैलेंस है तो क्या हो जाएगा, आपको आता है फिर भी आपका मार्क कट जाएगा, राइट? सो नाउ वी गो PCl5, phosphorus
pentachloride. Second, with alcohol ROH plus PCl5. Simple, we know displacement of halogen alcohol group from halogen, right? Simple. So first product RCl, it is well known, haloalkane, right? Simple. Plus what happened? Cl5 P and OH. So here the one product is HCl. Here H, in here one Cl, take one Cl and it form HCl. Now which product we get? PCl कितना बाकी है अभी? 3, और क्या बाकी है? O. तो हम क्या लिख सकते हैं? POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड. क्या लिख सकते हैं? फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, राइट. तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? फॉस्फोराइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? फॉस्फोराइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं और फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड भी बोल सकते हैं. इट्स डैम इजी. ओके, द फर्स्ट वन PX3 यानी कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. नाउ द थर्ड रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड रेड P. It is also very easy equation. Simple. What we can do? We take alcohol यानी कि ROH. This all reaction given in our textbook, right? ROH plus gives red P और X2 डाइहेलोजन लेना है, और इज अ डाइहेलोजन वी कैन टेक Br2 और I2. Br2 भी ले सकते हैं और I2 भी ले सकते हैं. यहाँ पे टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है? सिंपली हमको मालूम है ये जो Br है, ओके, हेलोजन है, वो डिस्प्लेस कर देता है किसका? अल्कोहल का, और उसकी जगह पे क्या आ जाता है? हेलोजन ग्रुप यानी कि Br और I जो भी लेते हैं. तो सिंपल वो बनता है RX, राइट, यानी कि हेलो अल्केन. और जो O है और जो H है, तो यहाँ से एक बन जाता है HBr, और जो ऑक्सीजन रहता है उसको लिखते हैं हाफ O2. बट वो टेक्स्ट बुक में दिया गया नहीं है, राइट, इतना ही दिया गया है. लेकिन जो और जो प्रोडक्ट है वो कौन है? HBr और हाफ O2, राइट. सो हियर वी कैन सी 4 रिएक्शन. फर्स्ट वन फ्रॉम अल्कोहल, हेलोजन एसिड भी बोल सकते हैं, यानी कि HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2. बट हियर एनहाइड्रस ZnCl2 वी कैन यूज एज अ कैटालिस्ट, राइट. So ROH plus concentrated HCl gives displacement of halogen group. We get haloalkane plus water. Second, simple phosphorus halide. In phosphorus halide, we use PX3, PCl5 and red P. Right. First reaction with PX3, we get RX और H3PO3, राइट. इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, राइट. नेक्स्ट, अल्कोहल प्लस PCl5 यानी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, राइट. वी गेट RX यानी कि हेलोअल्केन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, राइट. इन थर्ड रिएक्शन विथ रेड P और X2, alcohol red P X2, we can use here Br2 or I2, or in all reaction we know displacement of halogen, okay, so we get RX, right. Clear. Now fourth reaction, third reaction, halogen acid, phosphorus halide. Now third one is thionyl chloride. It's very simple, thionyl chloride. थायोनिल क्लोराइड यानी कि हम लिख सकते हैं उसको SOCl2,
राइट, थायोनिल क्लोराइड, उसको हम लिख सकते हैं SOCl2। तो क्या होता है रिएक्शन में? सिंपल, फर्स्ट वी कैन टेक ROH plus SOCl2. We know displacement of halogen, displacement of alcohol in all reaction. सिंपल, अल्कोहल को क्या होता है अपनी जगह से निकाला जाता है और उसकी जगह पे कौन आ जाता है? हेलोजन, यानी कि X, राइट। सो हियर Cl, OH की जगह पे कौन आ जाएगा? Cl। ओके, सो व्हाट हैपन? RCl plus what happen? S, here 1O, here 1O, here, so we can write here SO2, sulfur dioxide, plus here we have 1 H and here अभी हमारे पास एक क्लोरीन बाकी है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। सिंपल, व्हाट वी गेट? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि जो SO2 मिला है और जो HCl मिला है हमको, वो दोनों के दोनों कैसा है? गैसियस स्टेट में है। यहाँ पे आपको खास नोट्स करना है, ये दोनों के दोनों क्या है? गैसियस स्टेट में है, राइट। ये दोनों के दोनों क्या है? गैसियस स्टेट में है। तो जो हमको हेलो अल्केन मिलेगा, यानी कि जो RCl मिलेगा, RCl वो क्या होगा? प्योर होगा, राइट। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में है यहाँ पे। तो उसको अब सेपरेट करना क्या है? थोड़ा बहुत वो लगता है, ओके, कठिन होता है। बट यहाँ पे क्या है? दोनों को दोनों गैसियस स्टेट में, तो वो दोनों क्या निकल जाएगा? एयर में हो जाएगा, निकल जाता है इजीली। बट ये जो RCl है वो क्या मिलता है? प्योर स्टेट में। उसको सेपरेट भी इजीली किया जाता है और वो प्योर स्टेट में मिल सकता है, राइट। ये सारे का सारा जो एग्जाम्पल्स है वो टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ओके। तो अब हम 2 एग्जाम्पल ऐसे लेंगे जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है लेकिन डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ऊपर, राइट। तो और आप यहाँ भी देख सकते हो सारा का सारा जो इक्वेशन है वो क्या है? बैलेंस्ड है। अगर कोई भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस करना है, एक बार चेक कर लेना है। इक्वेशन की यही तो खासियत है कि उसको बैलेंस करना पड़ता है। अगर बैलेंस नहीं करते तो क्या जाता है? अगर हमारा इक्वेशन भले सही हो लेकिन उसका मार्क कट जाता है, ओके। इट्स वेरी सिंपल। नाउ क्लियर? 1 2 3 4 5 इक्वेशन क्लियर। नाउ 6 1 acid is with ब्रोमीन। अगर हम 48% ब्रोमीन को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, राइट, 48% ब्रोमीन यानी कि HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को क्या करते हैं? हीट करते हैं। वेरी सिंपल इक्वेशन, यहाँ पे लिख सकते हैं 4th वन। थर्ड इक्वेशन देखा, फर्स्ट वन हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HCl, राइट। सेकंड वन PX3PCl5, ओके, फॉस्फोरस हैलाइड। थर्ड वन थायोनिल क्लोराइड। नाउ फोर्थ वन HBr कितना? 48%, राइट। अभी फ्रॉम अल्कोहल यानी कि ROH प्लस HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड कितना लेना है हमको? 48%। और उसको क्या करना है? हीट देना है कंटिन्यूसली। क्या करना है डियर स्टूडेंट? सिंपल, कंटिन्यूसली क्या करना है? हीट देना है। तो क्या होगा? हमको मालूम है यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ऑफ हेलोजन ग्रुप, राइट, और उस वहाँ पे कौन आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अल्कोहल ग्रुप, और वहाँ पे कौन आ जाएगा? ब्रोमीन यानी कि हेलोजन ग्रुप। वेरी सिंपल, एक ही मेथड है, आपने देखा होगा अल्कोहल में एक ही मेथड है, सिंपल। तो यहाँ आपको मिल सकता है RBr, मिल गया हेलो अल्केन, सिंपल, प्लस हियर H and OH, we get H2O, राइट, हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्लस H2O। नाउ अभी जो रिएक्शन है कि NaBr, फिफ्थ रिएक्शन विथ अल्कोहल, NaBr प्लस H2SO4 का सॉल्यूशन है, सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 का सॉल्यूशन है। तो उसको क्या करते हैं? विथ अल्कोहल
simple. There is only one types of reaction, ROH plus NaBr plus H2SO4. What happen? ROH plus NaBr plus H2SO4. So here ये सॉल्यूशन है, तो हमको यहाँ पे जो हमको मालूम है सिंपल वन फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अल्कोहल ग्रुप. सो हियर हम देख सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयन को चेंज करते हैं, तो H प्लस ने HSO4 माइनस, H प्लस ने HSO4 माइनस, तो क्या बनेगा NaHSO4 प्लस HBr. राइट. तो अभी जो यहाँ पे रिएक्शन होगा तो उसमें से क्या होगा आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ हेलोजन ग्रुप, लेकिन हेलोजन की जगह पे कौन आ जाएगा, विच ब्रोमीन. राइट. क्या बनाना है, हेलो अल्केन. राइट. सो यहाँ पे लिख सकते हैं RBr. राइट, हेलो अल्केन प्लस यहाँ पे हमने देखा NaHSO4 यानी कि सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट, इधर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोला जा सकता है, सोडियम बाई सल्फेट भी आप बोल सकते हो. वेरी इजी रिएक्शन. प्लस अभी हमको मालूम है ये जो H है, राइट, और OH है, सिंपल HNOH. सो वी गेट H2O. एनी डाउट? सिंपल रिएक्शन. ओके. नाउ नेक्स्ट, अभी जो एक रिएक्शन है वो आपको होमवर्क में करना है. मैं भी आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ. 5 इक्वेशन हुआ है, 4th and 5th. नाउ 6th one you have to do in your homework. Okay, same types of reaction like NaBr and H2SO4. Okay, 6th equation homework. Okay, so यहाँ पे सिर्फ यही करना है, सॉल्यूशन ऑफ NaI प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन करना है. ओके. ये इक्वेशन टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है. ओके, ये आपको खुद करना है, यानी कि सेम ऊपर वाला ही है विथ अल्कोहल. तो लिख के भी देता हूँ मैं आपको, ROH प्लस NaI. यहाँ पे आप NaI की जगह पे Ki भी लिख सकते हैं. पोटेशियम, ये सोडियम आयोडाइड, और आप पोटेशियम आयोडाइड भी लिख सकते हैं. ओके, इधर NaI इधर Ki, कुछ भी लिख सकते हैं. प्लस H2SO4. ओके. सो यहाँ पे आपको ये इक्वेशन कंप्लीट करना है. क्लियर? विथ अल्कोहल, राइट, वी कैन सी 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शन. ओके, 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शन. फर्स्ट वन हेलोजन एसिड, सेकंड वन phosphorus halide, third one we can see, fourth one, which third one, thionyl chloride, fourth one HBr, fifth one NaBr plus H2SO4, and sixth one NaI plus H2SO4. Right? It is very easy. Now from alcohol, now we can see from hydrocarbon. यहाँ पे from alcohol में 6 types of reaction we can see. From alcohol we can see 6 types of reaction. Now we can see from hydrocarbon. From hydrocarbon, right? Or now we can see from hydrocarbon. यहाँ पे हम अल्कोहल निकाल देते हैं और लिखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. तो हाइड्रोकार्बन में क्या है, किसके साथ रिएक्शन करना है, तो हम देख सकते हैं अभी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में लिखना है फ्रॉम अल्केन बाय फ्री रेडिकल. फ्रॉम अल्केन बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन. From alkane by free radical halogenation. By free radical of halogenation, यानी कि हेलोजन का फ्री रेडिकल चाहिए, हेलोजन का फ्री रेडिकल, और अल्केन को यूज करना है एज हाइड्रोकार्बन. फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. ओके. नाउ
फ्रॉम हाइड्रोकार्बन फर्स्ट। इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम फ्री रेडिकल लेंगे। ओके, अगर हम यहाँ पे फ्री रेडिकल लेंगे तो सिंपल वो क्या तो मोनो अल्कोहल मोनो हाइड्रोकार्बन और पॉली हाइड्रोकार्बन होगा, राइट। मोनो हाइड्रोकार्बन और पॉली हाइड्रोकार्बन होगा। तो उसको यहाँ पे हमको दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक मेजर और एक माइनर। तो उसको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वो दोनों प्रोडक्ट एक साथ में मिलते हैं, राइट। जब हम उसको फ्री रेडिकल से रिएक्शन करेंगे तो उसको सेपरेट क्या होगा, सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेट्स सी फर्स्ट फ्रॉम अल्केन, हम अल्केन की जगह पे लेते हैं ब्यूटेन। क्या लेते हैं, ब्यूटेन, यानी कि 4 कार्बन। ओके, बैलेंस करते हैं इसको, वैलेंस से सेटिस्फाई करते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, राइट। प्लस फ्री रेडिकल ऑफ हेलोजिनेशन, यानी कि मैं यहाँ पे लेता हूँ Br2, और हम टेक्स्ट बुक में क्या लिया गया है हम देख लेते हैं, Cl2 क्लोरीन। ओके, तो हमको मालूम है क्लोरीन लेते हैं, सो फ्री रेडिकल में मालूम है क्या होता है, यूवी लाइट, अल्ट्रा वायोलेट लाइट, यूवी लाइट, राइट। सो अब क्या होगा, यहाँ पे जो Cl2 है जो अल्ट्रा वायोलेट है, लाइट की वजह से क्या हो जाएगा, Cl बॉन्ड Cl बराबर लाइट होगा। सो Cl ऐसे हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, Cl डॉट ये इलेक्ट्रॉन है। ओके, फ्री रेडिकल हो गए। सो अब क्या होगा, अब हम आगे रिएक्शन देखते हैं कि बहुत सिंपल है। क्या होगा, एक बार ये Cl है ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अटैच होगा। ओके, क्या होगा, यहाँ पे अटैच होगा। सो हम क्या कर सकते, विच प्रोडक्ट वी गेट, ध्यान से देखना, CH3 CH2 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 I, this one product, and second one product is CH3 CH2 CHI, और यहाँ पे CH3। क्लियर, हमको मालूम है जो लेस हाइड्रोजन है वहाँ पे अगर जो क्लोरीन लगाते हैं हम, वहाँ पे जो क्लोरीन लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, मेजर प्रोडक्ट, राइट। और ये क्या हो जाता है, माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है, अभी हमने बोला कि ये दोनों साथ में बनते हैं, राइट। वहाँ पे एक Cl आ गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो वो एक Cl के साथ क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। सेम यहाँ पे एक क्लोरीन है तो वहाँ यहाँ से एक हाइड्रोजन के साथ वो HCl बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, राइट। तो ये जो दोनों साथ में मिलते हैं प्रोडक्ट, तो उसको निकालने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए बहुत डिफिकल्टी रहती है, बिकॉज वो दोनों प्रोडक्ट क्या है, एक साथ में मिले हुए हैं। और इसका नोमेनक्लेचर भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हम नोमेनक्लेचर देते हैं तो क्या होता है, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूट और एन सिंगल बॉन्ड है। सेकंड यहाँ पे नाम दे सकते हैं 1 2 3 4। अगर यह क्लोरीन हम यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं तो अभी हमको नाम यहाँ से देना पड़ता है, 1 2 3 4 यहाँ पे लगाते हैं इस कार्बन के साथ, तो 1 2 3 4, यानी कि दोनों सेम है, ये दोनों कार्बन कवर हो गए हैं। क्लियर, सो इसका नोमेनक्लेचर देते हैं तो 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, इट्स वेरी इजी, सारा का सारा टेक्स्ट बुक में दिया गया है, आप एक ही बार पढ़ोगे गारंटी आपको आ जाएगा। क्लियर, ओके, फ्रॉम अल्कोहल विच फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। क्लियर है ये रिएक्शन, ओके। नाउ अब जो आगे का जो रिएक्शन है, ओके, जो उसमें लिखा गया है फ्रॉम अल्केन और फ्रॉम हेलोजन, ओके, फ्रॉम अल्केन और फ्रॉम हेलोजन, वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। ओके, नाउ अभी आपको सिर्फ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ओके, वो 6 रिएक्शन हमने देखे और दिस वन इज 7 एंड हियर 7th रिएक्शन। तो आज हमने 7 रिएक्शन देखे। ओके, तो 7 रिएक्शन आपको लिखना है, वो सारा का सारा PDF मैं आपको भेज दूंगा, लिखना है और आपको प्रिपेयर भी करना है।
ओके, अभी एग्जाम आने ही वाली है। सो अगेन अल्केन यानी कि हाइड्रोकार्बन में क्या लिया, ब्यूटेन। ओके, और वी कैन यूज क्लोरीन। ओके, यूवी लाइट हमको मालूम, अगर हम यूवी लाइट देते हैं तो क्या हो जाता है, फ्री रेडिकल में हो जाता है क्लोरीन। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं वन प्रोडक्ट इज 1 क्लोरोब्यूटेन एंड सेकंड प्रोडक्ट इज 2 क्लोरोब्यूटेन। ओके, सो क्या होता है कि यहाँ पे जो 2 क्लोरोब्यूटेन है वो क्या होगा, माइनर, वो ज़्यादा मिलेगा हमको। ओके, और जो 1 क्लोरोब्यूटेन है वो क्या होगा, हमको बहुत कम मिलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद का जो 2 इक्वेशन बाकी है अभी हमारा, ओके, सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। और उसके बाद एक इंटेक्स क्वेश्चन भी है, इसके बाद एक इंटेक्स क्वेश्चन भी है, वो भी हमको अभी सॉल्व करना है। आप अपनी तरफ से एक बार ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। ओके, अगर नहीं आपको सॉल्यूशन होता है तो हम साथ में सॉल्यूशन करेंगे। ओके, डोंट वरी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।